Hello students, my name is Kuljeet Kaur. I am lecturer biology in Government Girls Senior Secondary School Kurali, District SS Nagar. Students, in my previous video, we started chapter 5, that is Principle of Inheritance and Variation. So today let's start the new topics. Okay students, अपने लास्ट ਲੈਕਚਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੱਚੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਗ੍ਰੇਗੋਰ ਮੈਂਡਲ ਬਾਰੇ ਦੱਸਿਆ ਸੀਗਾ ਕਿ ਮੈਂਡਲ ਜਿਹੜੇ ਸੀਗੇ ਉਹ ਇੱਕ ਫਰਸਟ ਸਾਇੰਟਿਸਟ ਸੀਗੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿ ਸਿਸਟਮੈਟਿਕ ਸਟੱਡੀ ਕੀਤਾ ਸੀ ਇਨਹੈਰੀਟੈਂਸ ਦਾ ਐਂਡ ਹੀ ਸੈਡ ਕਿ देयर इज अ ट्रांसफर ऑफ कैरेक्टर्स फ्रॉम पेरेंट्स टू प्रोजेनीज। ਜੋ ਮੈਂਡਲ ਸੀਗੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੱਲ੍ਹ ਦੱਸਿਆ ਸੀਗਾ ਕਿ ਉਹ ਮੋਨੈਸਟਰੀਜ਼ ਦੇ ਸੀਗੇ, ਉੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਗਾਰਡਨ ਸੀ ਉਹਦੇ 'ਚ ਪੀ ਪਲਾਂਟ ਗਰੋ ਹੋ ਰਹੇ ਸੀਗੇ ਤਾਂ ਉਹ ਰੈਗੂਲਰ ਵਿਜ਼ਿਟ ਕਰਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਸੀ ਆਪਣੇ ਗਾਰਡਨ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਤਾਂ ਉਸ ਸਮੇਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਓਬਜ਼ਰਵ ਕੀਤਾ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਪੀ ਪਲਾਂਟ ਹੈ ਉਹਦੇ 'ਚ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਡਿਫਰੈਂਸ ਨੇ, ਜਿਵੇਂ ਕੁਝ ਪੀ ਪਲਾਂਟ ਟੌਲ ਸੀਗੇ, ਕੁਝ ਸ਼ਾਰਟ ਸੀਗੇ ਹਾਈਟ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਫਲਾਵਰ ਦਾ ਕਲਰ ਡਿਫਰੈਂਟ ਸੀਗਾ, ਸਮ ਵਰ ਵਾਈਟ ਇਨ ਕਲਰ ਐਂਡ ਸਮ ਫਲਾਵਰਸ ਵਰ ਪਰਪਲ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੀਡਸ ਦੀ ਸ਼ੇਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਰਕ ਸੀਗਾ। ਦੈਨ ਹੀ ਵਾਜ਼ ਵੈਰੀ ਅਮੇਜ਼ਡ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਹੈਰਾਨੀ ਹੋਈ ਹੈ ਦੇਖ ਕੇ ਕਿ ਇੱਕੋ ਹੀ ਪਲਾਂਟ ਹੈ ਉਹਦੇ 'ਚ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਡਿਫਰੈਂਸਿਸ ਕਿਉਂ ਨੇ। ਸੋ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਜੋ ਨੌਲੇਜ ਸੀਗੀ, ਹਿਸ ਨੌਲੇਜ ਆਫ ਸਾਇੰਸ ਐਂਡ ਮੈਥਮੈਟਿਕਸ, ਉਸ ਨੂੰ ਅਪਲਾਈ ਕੀਤਾ ਔਰ ਸਾਨੂੰ ਇਨਹੈਰੀਟੈਂਸ ਦੇ ਲੌਸ ਦਿੱਤੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਡਿਫਰੈਂਟ ਡਿਫਰੈਂਟ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਇਨਹੈਰੀਟੈਂਸ ਸਟੱਡੀਜ਼ ਕੀਤੀਆਂ, ਜਿਵੇਂ ਮੋਨੋ ਹਾਈਬ੍ਰਿਡ ਇਨਹੈਰੀਟੈਂਸ ਸੀ ਜੇ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਕਰੈਕਟਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਫਰੋਮ ਵਨ ਜਨਰੇਸ਼ਨ ਟੂ ਅਨਦਰ ਜਨਰੇਸ਼ਨ, ਐਂਡ ਦੈਨ ਡਾਈ ਹਾਈਬ੍ਰਿਡ ਕ੍ਰਾਸ ਇਨ ਵਿਚ ਹੀ ਜਸਟ ਸਟੱਡੀਡ ਦਾ ਇਨਹੈਰੀਟੈਂਸ ਆਫ ਟੂ ਕਰੈਕਟਰਸ। ਸੋ ਬੱਚੇ ਅੱਜ ਆਪਣੇ ਇਸ ਲੈਕਚਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਅੱਗੇ ਮੋਨੋ ਹਾਈਬ੍ਰਿਡ ਕ੍ਰਾਸਿਸ ਵੀ ਕਰਾਂਗੇ। ਉਸ ਨੂੰ ਸਟੱਡੀ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਮੈਂਡਲ ਦੇ ਵਰਕ ਨੂੰ, ਰਿਸਰਚ ਨੂੰ ਪ੍ਰੋਪਰ ਸਮਝਣ ਵਾਸਤੇ ਅੱਜ ਆਪਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕੁਝ ਬੇਸਿਕ ਟਰਮਸ ਹੈਗੀਆਂ ਨੇ ਇਸ ਚੈਪਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਯੂਜ਼ ਹੋਣਗੀਆਂ, ਉਹ ਆਪਾਂ ਅੱਜ ਪਹਿਲਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹ ਸਮਝਾਂਗੇ। ਓਕੇ, ਫਸਟ ਆਫ ਆਲ ਬੱਚੇ ਫਸਟ ਜਿਹੜੀ ਬੇਸਿਕ ਟਰਮ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਉਹ ਹੈਗੀ ਹੈ ਜੀਨ। जीन जो है ਜਿਹੜਾ ਮੈਂਟਲ ਹੈ ਉਸਨੇ ਜੀਨ ਵਰਡ ਨਹੀਂ ਯੂਜ਼ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਹੀ ਯੂਜ਼ ਦਾ ਵਰਡ ਫੈਕਟਰ, ਔਰ ਇਸੇ ਫੈਕਟਰ ਨੂੰ ਬਾਅਦ ਚੋਂ ਅਸੀਂ ਕੀ ਬੋਲਿਆ, ਜੀਨ ਬੋਲਿਆ। what he said ਕਿ ਜੀਨ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਇਹ ਸੈਗਮੈਂਟ ਆਫ DNA ਹੈ ਵਿਚ ਇਜ਼ ਕੋਡਿੰਗ ਫॉर ਕੰਪਲੀਟ RNA। ਬੱਚੇ ਆਪਾਂ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਨਿਊਕਲੀਅਸ ਹੈ, ਨਿਊਕਲੀਅਸ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕ੍ਰੋਮੈਟਿਨ ਜਾਂ ਕ੍ਰੋਮੋਜ਼ੋਮਸ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਸੋ ਕ੍ਰੋਮੋਜ਼ੋਮ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗਾ, ਜੇ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਕ੍ਰੋਮੋਜ਼ੋਮ ਬਣਾਉਣੀ ਹੈ ਬੱਚੇ, ਕ੍ਰੋਮੋਜ਼ੋਮ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕੀ ਹੈ, DNA ਹੈ, राइट। और what is a जीन? जीन उस DNA ਦਾ ਇੱਕ ਪਾਰਟ ਹੈ, ਇੱਕ ਸੈਗਮੈਂਟ ਹੈ ਵਿਚ ਇਜ਼ ਕੋਡਿੰਗ ਫॉर ਕੰਪਲੀਟ RNA। ਆਪਾਂ ਅੱਗੇ ਵੀ ਪੜਾਂਗੇ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ DNA ਤੋਂ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ RNA ਕੋਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਔਰ RNA ਅੱਗੇ ਕੋਈ ਪਰਟੀਕੂਲਰ ਟਾਈਪਸ ਦੇ ਪ੍ਰੋਟੀਨ ਬਣਾਉਣ 'ਚ ਸਾਡੀ ਹੈਲਪ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਜੀਨ ਜੋ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਇੱਥੇ ਮੈਂ ਇੱਕ ਡਾਇਗਰਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਿਖਾਇਆ ਹੈ ਕਿ ਆਪਣਾ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡਾ DNA ਹੈ ਉਸ ਦੇ ਉੱਪਰ ਮੈਂ ਗ੍ਰੀਨ ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਜੀਨ ਮਾਰਕ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਸੋ ਕੋਈ ਵੀ ਪਰਟੀਕੂਲਰ ਕਰੈਕਟਰ, ਸਪੋਜ਼ ਕਰੋ ਕਲਰ ਆਫ ਦਾ ਆਈ ਹੈ ਜੋ ਜੀਨ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਕਿਸ ਪਲੇਸ ਦੇ ਉੱਪਰ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ ਹੈ ਆਪਣੇ ਕ੍ਰੋਮੋਜ਼ੋਮ ਦੇ ਉੱਪਰ। ਸੋ ਉਹ DNA ਦਾ ਪਾਰਟ ਜੋ ਕਿ ਪਰਟੀਕੂਲਰਲੀ ਕੋਡ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਇੱਕ ਕਰੈਕਟਰ ਵਾਸਤੇ, ਉਸ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਜੀਨ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਜੀਨ ਨੂੰ ਫੰਕਸ਼ਨਲ ਯੂਨਿਟ ਆਫ ਹੈਰੀਡਿਟੀ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ। ਔਰ ਅਗਰ ਆਪਾਂ ਕ੍ਰੋਮੋਜ਼ੋਮ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ, ਇੱਕ ਕ੍ਰੋਮੋਜ਼ੋਮ ਉਸ ਦੇ ਉੱਪਰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਜੀਨਸ ਹੁੰਦੇ। ਨੈਕਸਟ ਜਿਹੜੀ ਡੈਫੀਨੇਸ਼ਨ ਹੈ ਬੱਚੇ ਉਹ ਹੈਗੀ ਹੈ ਐਲੀਲ। ਬੱਚੇ ਐਲੀਲ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਇਸ ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਵਾਸਤੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਸਮਝਣਾ ਪਏਗਾ, ਜਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਹਿਊਮਨਸ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਉਹ ਡਿਪਲੋਇਡ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਹਿਊਮਨਸ ਦੇ ਕੋਲ 23 ਪੇਅਰ ਆਫ ਕ੍ਰੋਮੋਜ਼ੋਮਸ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਜੇ ਮੈਂ ਇੱਥੇ 2 ਕ੍ਰੋਮੋਜ਼ੋਮ ਬਣਾਵਾਂ, ਇੱਕ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਮਦਰ ਤੋਂ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਇੱਕ ਫਾਦਰ ਤੋਂ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਇੱਕ ਪੈਟਰਨਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਇੱਕ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਮੈਟਰਨਲ, ਰਾਈਟ। ਸੋ ਐਲੀਲ ਕੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਐਲੀਲ ਇੱਕੋ ਜੀਨ ਦੀਆਂ 2 ਆਲਟਰਨੇਟਿਵ ਫਾਰਮਸ ਨੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਸੋ ਐਲੀਲਸ ਆਰ ਲੋਕੇਟਿਡ ਐਟ ਦ ਸੇਮ ਪੋਜੀਸ਼ਨ ਔਰ ਦ ਲੋਕਸ ਔਨ ਦ ਕ੍ਰੋਮੋਜ਼ੋਮ। ਲੋਕਸ ਕੀ ਹੈ, ਲੋਕਸ ਇੱਕ ਉਹ ਜਗ੍ਹਾ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਕਿ ਜੀਨ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਹੁਣੇ ਅੱਗੇ ਇਹਦੀ ਡੈਫੀਨੇਸ਼ਨ ਤੁਹਾਨੂੰ ਫਿਰ ਦੁਬਾਰਾ ਦੱਸਾਂਗੀ। ਸਪੋਜ਼ ਇਹ 2 ਮੈਂ ਕ੍ਰੋਮੋਜ਼ੋਮਸ ਬਣਾਏ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਇਹ ਜਿਹੜੇ 2 ਪੁਆਇੰਟਸ ਮੈਂ ਬਣਾਏ ਨੇ, ਇਹ ਕੀ ਹੈ, ਇੱਕ ਪਲੇਸ ਹੈ ਕ੍ਰੋਮੋਜ਼ੋਮ ਦੇ ਉੱਪਰ ਜਿੱਥੇ ਕਿ ਜੀਨ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਸੋ ਇੱਥੇ ਇਹ ਕੀ ਹੈ, ਐਲੀਲ ਹੈ। ਹਰ ਇੱਕ ਜੀਨ ਦੇ ਕੀ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, 2 ਐਲੀਲਸ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਜਿਵੇਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਹਿੰਦੀ ਹਾਂ ਕਿ ਹਾਈਟ, ਕਿਸੇ ਵੀ ਪਲਾਂਟ ਦੀ ਹਾਈਟ, ਕੋਈ ਜੀਨ ਕਿਸੇ ਪਲਾਂਟ ਦੀ ਹਾਈਟ ਫਾਈਂਡ ਆਊਟ ਕਰਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਦੱਸਦੀ ਹੈ। ਸੋ ਹਾਈਟ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ
एक करैक्टर है, लेकिन हाइट जो है वो स्मॉल हाइट भी हो सकती है, टॉल भी हो सकती है। सो ਇਹ ਕੀ ਨੇ ਉਸਦੇ ਟ੍ਰੇਟਸ ਨੇ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜੀ ਜੀਨ ਹੈ ਉਸ ਦੀਆਂ ਦੋ ਆਲਟਰਨੇਟਿਵ ਫਾਰਮਸ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਐਲੀਲਸ ਬੋਲਦੇ ਹਾਂ, ਠੀਕ ਹੈ। ਸੋ ਐਲੀਲਸ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਦੋਨੋਂ ਕ੍ਰੋਮੋਜ਼ੋਮਸ ਜਿਹੜੇ ਹੋਣਗੇ ਉਹਦੇ ਤੇ ਸੇਮ ਪੁਆਇੰਟ ਤੇ ਸੇਮ ਲੋਕਸ ਦੇ ਉੱਪਰ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ ਹੋਣਗੇ। ਨੈਕਸਟ ਓਕੇ, ਸੋ ਬੱਚੇ ਵਾਟ ਇਜ਼ ਜੀਨ ਲੋਕਸ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੁਣੇ ਐਕਸਪਲੇਨ ਕੀਤਾ। पोर्शन ऑन द क्रोमोजोम रिप्रेजेंटिंग अ सिंगल जीन। आ एक क्रोमोजोम है, क्रोमोजोम के ऊपर वो पर्टिकुलर पॉइंट जिथे कोई सिंगल जीन प्रेजेंट है। जिवें सपोज करो आ एक क्रोमोजोम है, इस क्रोमोजोम के ऊपर आ एक पॉइंट है जिथे आई कलर की जीन प्रेजेंट है, उस तो बाद आ एक पॉइंट है जिथे कि हेयर कलर्स की जीन प्रेजेंट है। सो ये जिहड़ियां जीन्स ने ये की कर रहे हैं पर्टिकुलर प्लेस ते प्रेजेंट ने ऑन द क्रोमोजोम। तो जिस प्लेस ते प्रेजेंट ने उसनूं आपां लोकस बोलते हैं। नैक्सट साडे कोल दो वर्ड्स आ रहे हैं, होमोजाइगस ते हेटरोजाइगस। होमोजाइगस देखो बच्चे मैं तुहानूं हुणे दस्सिया कि हर एक जिहड़ा जीन है उसके दो एलील्स होंदे ने, ठीक है, अल्टरनेटिव फॉर्म ऑफ द सेम जीन है। अगर दोनों एलील्स सिमिलर है, सपोज करो एक जीन है वो हाइट नूं कंट्रोल कर रही है, हाइट वास्ते सपोज करो आपां टॉल प्लांट है तो टॉल प्लांट वास्ते असीं कैपिटल टी लांगे क्योंकि दो एलील्स है और ये दोनों एलील्स जिहड़ी ने किस दी एलील्स ने, एक जीन दी एलील्स ने। किहड़ी चीज़ जिहड़ी कि फाइंड आउट कर रही है, हाइट फाइंड आउट कर रही है, राइट। सो अगर दोनों एलील्स सेम होंगे या कैपिटल टी होएगा या स्मॉल टी होएगा, दोनों सेम होंगे तो इस सिचुएशन में दिस इज कॉल्ड होमोजाइगस, ठीक है। सो ये इको टाइप के गैमीट्स प्रोड्यूस करेंगे, जी कैपिटल टी है वो की प्रोड्यूस करेगी, कैपिटल टी, और जो स्मॉल टी है वो की प्रोड्यूस करेगी, स्मॉल टी प्रोड्यूस करेगी। सो इदा का इस जो ऑर्गेनिजम्स होंगे उन्होंने असीं होमोजाइगस ऑर्गेनिजम भी कहते हैं, जिहदे दोनों एलील्स जिहड़े होंदे ने वो सिमिलर, जीन्स जिहड़े ने उहदे जीन ते दोनों एलील जिहड़े ने वो इक्को जी। उस तो कंट्रास्ट जिहड़ा है वो हैगा हेटरोजाइगस। हेटरोजाइगस च की है, दोनों एलील्स की ने डिसिमिलर ने, और सेम नहीं है। देखो एक कैपिटल टी है एक स्मॉल टी है, ठीक है, ये भी हाइट वास्ते है, एक कैपिटल टी है एक स्मॉल टी है, मतलब दोनों एलील्स जिहड़े ने वो डिफरेंट ने। अगे जो ये गैमीट्स प्रोड्यूस करेंगे, जो फर्टिलाइजेशन के टाइम पे गैमीट्स बनते हैं तो एक गैमीट को कैपिटल टी आएगा, एक को स्मॉल टी आएगा, तो दो डिफरेंट गैमीट्स हो गए, डिसिमिलर हो गए एलील्स, तो इसनूं असीं हेटेरोजाइगस बोलते हैं। नैक्सट ओके बच्चे, हुण दो होर न्यू टर्म्स आ गए, एक नूं असीं कहने आ जीनोटाइप, एक नूं आपां कहने आ फीनोटाइप। जीनोटाइप की होंदा है बेटे, जी तो मतलब जेनेटिक कॉन्स्टिट्यूशन। सपोज करो मैं कहनी हाँ कि कोई प्लांट है वो टॉल है तो वो वास्ते मैं आ वाली एलील भी यूज़ कर सकती हूँ, प्लांट इज टॉल। या मैं कहनी हाँ कि प्लांट जोड़ा है वो ड्वार्फ है, छोटा है, तो छोटे प्लांट वास्ते असी सेम जोड़ा एल्फाबेट असी बिग वास्ते यूज़ किया है, सेम एल्फाबेट नूं लोअर केस दे विच असी स्मॉल ले यूज़ करते हैं, स्मॉल टी। अगर प्लांट टॉल है तो आप अगर टी यूज़ किया, अगर प्लांट ड्वार्फ है, ड्वार्फ मैंने छोटा है, तो वो वास्ते आप डी वर्ड नहीं यूज़ करते। तो कन्फ्यूजन को अवॉइड करने वास्ते अगर साडे कोल कोई प्लांट जिहड़ा हैगा वो टॉल प्लांट है, वो वास्ते असी कैपिटल टी यूज़ किया, तो उसका जिहड़ा कंट्रास्ट है ड्वार्फ प्लांट, वो वास्ते असी स्मॉल टी यूज़ करते हैं, ठीक है बच्चे। सो जीनोटाइप की होंदा है, जीनोटाइप इज जेनेटिक कॉन्स्टिट्यूशन। तो कैपिटल टी हो गया, स्मॉल टी, ये आपां नूं दिख नहीं रहा, असीं इसनूं ऑब्जर्व नहीं कर पा रहे, अपनी आइज़ नाल देख नहीं रहे, ये जीन लैवल ते है, जेनेटिक कॉन्स्टिट्यूशन है, ठीक है, और ये किसी भी तरह के एनवायरमेंटल फैक्टर दे नाल इफेक्ट नहीं होता। नैक्सट हैगा फिनोटाइप। फिनोटाइप मीनस एक्सटर्नल करैक्टर्स मीनस जिवें असीं मैं गार्डन च देखा कि एक प्लांट जिहड़ा हैगा वो टॉल है, द प्लांट इज बिग इन साइज, और दूसरा प्लांट जिहड़ा हैगा वो स्मॉल है। सो ए बिग प्लांट है, ए टॉल प्लांट है, ए ड्वार्फ प्लांट है, ठीक है। हुण की है इस नूं मैं देख सकती हाँ, ये एक इस तरह का करैक्टर है जो कि ईजीली ऑब्जर्व किया जाता है। सो इट रिजल्ट्स फ्रॉम द इंटरैक्शन ऑफ जीनोटाइप्स। सो ये जिहड़ा करैक्टर है जो तुसीं देख सकते हो, ईजीली ऑब्जर्वेबल करैक्टर है, इस नूं असीं फिनोटाइप कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल प्लांट इज टॉल, फॉर एग्जाम्पल कलर ऑफ द आई इज रेड और द कलर ऑफ द सीड इज ग्रीन। सो दीज करैक्टर्स यू कैन ईजीली सी विद योर आइज, सो दे आर नोन एज phenotypes, and the one which you cannot see, which are not affected by environment and which is actually the genetic
genetic constitution that are known as genotypes. next word आ रहा बच्चे pure line. Pure line का की मतलब होता है generations of homozygous individuals which produce offspring of only one type. For example की होएगा बच्चे, मैं थानू इसनू explain कर दिया हुने. ओके ਇੱਥੇ देखो बेटे प्योर लाइन का की मतलब है, सपोज साडे कोल एक टॉल प्लांट है, ठीक है. टॉल प्लांट क्योंकि एलिन जी है पेयर च आप दो लाँगे और इसनू असी टॉल प्लांट दे नाल ही क्रॉस करते हैं. इत्थे क्रॉस मीनस इत्थे आप रिप्रोडक्शन दिखा रहे हैं. सो की होएगा जदों दोनों एक दा आप मेल लिया एक दा आप फीमेल लिया, सपोज आप इस प्लांट तो अपना मेल आ रहा है, इस चों अपनी फीमेल आ रही है. सो जदों ये आपस च रिप्रोड्यूस करनगे तो साडे कोल जाइगोट आएगा. वो जिहड़ा प्लांट होएगा वो भी टॉल होएगा, ठीक है. सपोज करो कोई एक अद्धा % डवार्फ प्लांट आ गया, लेकिन आपां उस डवार्फ प्लांट नू यूज़ नहीं करना, राइट. फिर आ जिहड़ा टॉल प्लांट आया, फिर असी अगे जिहड़े इस प्लांट दे ही सीड यूज़ करने हैं, फिर असी इहदा ही दोबारा क्रॉस करांगे अगेन टॉल दा. फिर साडे कोल नैक्सट जनरेशन आएगी, फिर सारे प्लांट की आ जाएंगे टॉल आ जाएंगे, ठीक है. सो मतलब इको ही करैक्टर जिहड़ा है साडे कोल अगे अगे जा रहा है, इसनू असी प्योर लाइनस बोलते हैं. आपां वापस अपनी स्लाइड ते जावांगे जिथे आपां पढ़ रहे सी बच्चे. सो ये जिहड़ा हैगा इसनू आपां प्योर लाइनस कहते हैं. ध्यान नाल देखो, आपां टॉल प्लांट नू टॉल प्लांट नाल क्रॉस किया, फर्स्ट जनरेशन सारी टॉल सी. अगेन उन्होंने असी सैल्फिंग की, सैल्फिंग मतलब टॉल नू फिर टॉल नाल किया, अगेन साडे कोल सारे टॉल प्लांट आएंगे, ठीक है. सेल्फ पॉलीनेशन और इसके क्रॉस पॉलीनेशन भी अपने अंदर कर सकते हैं. सो ये जिहड़ी एक तरह के ऑफस्प्रिंग आ रहे हैं, एक टाइप के आ रहे हैं, इहदे नाल सानू की मिलता है प्योर लाइनस मिलता है. देन हैगा रेसिप्रोकल क्रॉस. रेसिप्रोकल क्रॉस बहुत ईजी है. इसका मतलब अ पेयर ऑफ क्रॉस बिटवीन मेल ऑफ वन स्ट्रेन एंड फीमेल ऑफ अनदर एंड वाइस वर्सा. सपोज असी एक क्रॉस किया, ध्यान नाल सुनो, उहदे विच जिहड़ा दो प्लांट्स ने, एक ए है और एक बी है. सपोज करो असी फर्स्ट क्रॉस दे विच ए प्लांट का मेल लिया और बी प्लांट का फीमेल लिया, ठीक है, और आप अपना फर्टिलाइजेशन करवाती. लेकिन जदों हुण आपां नैक्सट करना, उहदे च आपां की कीता, ए प्लांट का आपां फीमेल ले लिया और बी प्लांट का आपां ले लिया मेल, ठीक है. सो पहला आपां मेल ए का की लिया सी, मेल लिया सी, बी का फीमेल लिया सी, फिर आपां कीता उल्टा करता, ए तो आपां फीमेल ले लिया और बी तो आपां मेल ले लिया. सो इस तरह के जिहड़े क्रॉसेस हुंदे ने, इन्हां नूं असीं रेसिप्रोकल क्रॉसेस बोलते हैं. ओके नेक्स्ट, मोनोहाइब्रिड क्रॉस एंड डाईहाइब्रिड क्रॉस. मोनो मीनस वन, हाइब्रिड मीनस जदों दो चीज़ां मिक्स हो जांदियां ने, जिवें कि असी टॉल प्लांट लिया और डवार्फ प्लांट लिया, ठीक है. सब तो पहला तो ये समझो कि मोनो मीनस हुंदा है वन. जदों असी क्रॉस करते हैं दो पेरेंट्स विच आर डिफरेंट इन ओनली वन पेयर ऑफ कंट्रास्टिंग करैक्टर, वन पेयर. जिवें प्लांट की हाइट आप सिर्फ हाइट देखनी है, जिवें आपां कैपिटल टी, कैपिटल मीनस टॉल प्लांट है, इस नूं आपां क्रॉस कर रहे हैं स्मॉल प्लांट के नाल, उहदे वास्ते अपना लेना स्मॉल टी, स्मॉल टी. सो आपां सिर्फ इको ही करैक्टर नूं कंसीडर कर रहे हैं, ट्रांसफर ऑफ सिर्फ वन ट्रेट देख रहे हैं, दैट इज़ आपां हाइट नूं लैके चल रहे हैं. सो इस तरह के जिहड़े क्रॉसेस ने उन्हां नूं आपां मोनोहाइब्रिड क्रॉस कहते हैं, ठीक है. अगे जाके मैं तुहानूं एक्सप्लेन करांगी कि किस तरह जदों एक क्रॉस करनगे तो साडे कोल फर्स्ट जनरेशन जिहड़ी आएगी उहदे च कैपिटल टी ते स्मॉल टी आएगा विच इज़ अ हाइब्रिड. क्योंकि एक गैमीट्स जदों बन गए, एक गैमीट सपोज करो मेल इत्थों आ रहा है, फीमेल इत्थों आ रहा है. सो दोनों गैमीट्स के फ्यूजन के नाल जदों जाइगोट बनेगा तो उहदे कोल कैपिटल टी ते स्मॉल टी आ जाएगा, ठीक है. अभी हुणे तुहानूं एक्सप्लेन कर लिया. Then next है डाईहाइब्रिड क्रॉस. डाईहाइब्रिड क्रॉस होता है क्रॉस बिटवीन टू पेरेंट्स विच डिफर इन टू पेयर्स ऑफ कंट्रास्टिंग करैक्टर. दो पेयर्स ऑफ कंट्रास्टिंग करैक्टर है. जिवें असी क्रॉस किया, एक प्लांट है उहदे च आपां सीड उहदे जिहड़े ने राउंड शेप है सीड दी और येलो कलर है. इसका क्रॉस आप कर रहे हैं दूजा प्लांट जिहदे कि सीड रिंकल्ड ने और उहदा कलर हैगा ग्रीन. सो इत्थे आपां की कर रहे हैं, वी आर टेकिंग इन टू अकाउंट हाउ मैनी करैक्टर्स, टू करैक्टर्स. सो जदों असी दो पेरेंट्स ले और वो जिहड़े कि दो करैक्टर्स के नाल आपस में डिफर कर रहे हैं. सो इस तरह के जिहड़े क्रॉस होंदे ने इन्हां नूं आपां कहंदे आ बच्चे डाईहाइब्रिड क्रॉस. नेक्स्ट ओके बच्चे, इत्थे एक मैं डायग्राम है तुहानूं मैं मोनोहाइब्रिड क्रॉस दिखाने की कोशिश की है, इसनूं मैं अगे एक्सप्लेन भी करांगी. बच्चे देखो इत्थे दो प्लांट्स ने, वन प्लांट इज़ टॉल एंड वन इज़ ड्वार्फ. ड्वार्फ मीनस छोटा, जिहड़ा टॉल है उहदे वास्ते मैं तुहानूं हुणे दस्सिया सी कैपिटल टी यूज़ करांगे और उसते ड्वार्फ प्लांट वास्ते असी सेम लैटर नूं लोअर केस दे विच यूज़ करांगे छोटा टी.
ठीक है। हुण दोनों दे विच की होया, ये दोनों ये पेरेंट्स ने, टॉल एंड डवार्फ की ने, पेरेंट्स ने। आपां इक्को ही करैक्टर लैके चलिया है। इत्थे असीं कैपिटल की एलिल हो गए, और किहड़े जीन दे एलिल है, क्योंकि आपां हाइट लैके चल रहे हैं। सो इक्को जीन दे दो एलिल्स इत्थे, क्योंकि एलिल्स पेयर च हुंदे ने, और दोनों इत्थे। उस तो बाद जदों एक गैमीट्स बनाएंगे, हुण ये दोनों एलिल इक्को तरह के हैं, इन्हां तो किहड़ा गैमीट बनेगा, कैपिटल टी। इन्हां तो किहड़ा गैमीट बनेगा, स्मॉल टी। इक्को टाइप के बन रहे हैं ना, आ देखो। हुण दोनों गैमीट्स, व्हाट इज फर्टिलाइजेशन? फर्टिलाइजेशन इज द फ्यूजन ऑफ द गैमीट्स। सो इत्थों एक टी इत्थों आया, दूसरा टी इत्थों आया, तो साडे कोल एक हाइब्रिड बन गया, कैपिटल टी एंड स्मॉल टी। ठीक है, ये हाइब्रिड बन गई, कैपिटल टी एंड स्मॉल टी। इत्थे शो है, एक टी इधरों आया, स्मॉल टी आया, कैपिटल टी स्मॉल टी बन गया। ठीक है, सारे दे सारे प्लांट्स जिहड़े सीगे ये की सीगे, टॉल सीगे। तुहानूं मैं हुणे एक्सप्लेन करांगी कि सारे प्लांट्स टॉल क्यों आए। उस तो बाद फिर उन्होंने इसनूं फिर जिहड़े अपने हाइब्रिड्स आए, इन्हों अगे फिर सैल्फिंग की, जो फर्स्ट जनरेशन का रिजल्ट आया कैपिटल टी स्मॉल टी, इसनूं आपस दे विच फिर पेरेंट्स बना के नैक्सट जनरेशन प्रोड्यूस की, F2 जनरेशन। ठीक है बच्चे, तुहानूं हुणे नैक्सट एक्सप्लेन करते हैं। ओके, मोनोहाइब्रिड क्रॉस की है। मोनोहाइब्रिड हुणे जो मैं तुहानूं पिछे एक इलस्ट्रेशन च शो किया, उसनूं इत्थे मैं एक्सप्लेन करने की कोशिश की है। बच्चे एक्चुअली इस मैथड के नाल जेनेटिक्स नूं टीच करना थोड़ा जा मुश्किल है, बट मैं कोशिश की है तुहानूं हर पॉइंट नूं क्लीयर करन दी विद द हेल्प ऑफ दीज स्लाइड्स। सो तुसीं ध्यान नाल इहनूं समझो। मोनोहाइब्रिड क्रॉस में हुणे दस्सिया इनहेरिटेंस ऑफ ओनली वन जीन। सो आपां एक करैक्टर लिया, टॉल प्लांट ते ड्वार्फ प्लांट। ठीक है, ये साडे पेरेंट्स हो गए। टॉल जिहड़ा हैगा कैपिटल टी है, ड्वार्फ जिहड़ा हैगा वो स्मॉल टी है। जदों इन्हां ने रिप्रोड्यूस किया, फर्टिलाइजेशन हुई, तो F1 कहते हैं फर्स्ट जनरेशन आई, पहली जनरेशन। सो उस जनरेशन की आया, सारे प्लांट्स टॉल आ गए, एक भी प्लांट डवार्फ नहीं आया, जबकि साडा पेरेंट एक डवार्फ सीगा, छोटी हाइट का सीगा, एक टॉल सीगा। सो मेंडल ने ऑब्जर्व किया कि जो उन्हें रिप्रोड्यूस कराया, जिन्ने भी प्लांट्स आए सारे प्लांट्स टॉल सीगे, नन डवार्फ, कोई भी प्लांट जिहड़ा उहदे चो डवार्फ नहीं सीगा। ਇਹਦਾ मतलब उसने की किया कि जी फर्स्ट जनरेशन आएगी F1 जनरेशन, वो सिर्फ एक पेरेंट नूं रिजेंबल कर रही है, दोनों नूं रिजेंबल नहीं कर रही। इस केस च किनूं रिजेंबल कर रही है, टॉल पेरेंट नूं रिजेंबल कर रही है। ठीक है, फिर उन्हें की किया, सैल्फ करती, जिहड़ा उहदे कोल रिजल्ट आया सी कैपिटल टी, उसने इस नूं सैल्फिंग करती, इहदा ही मेल ले लिया, इसका ही फीमेल ले लिया। आपस में दोनों पेरेंट्स कैपिटल टी स्मॉल सी, ये हेट्रोजाइगस हो गए ना बच्चे। हुणे मैं तुहानूं दस्सिया, जो दोनों एलिल सेम ने तो होमोजाइगस है, जो दोनों एलिल डिफरेंट ने तो की है, हेट्रोजाइगस है। नाउ व्हाट ही डिड, उन्होंने सैल्फ पॉलीनेशन करती, कैपिटल टी स्मॉल टी नाल क्रॉस करता। हुणे मैं तुहानूं इलस्ट्रेशन दिखाया सी, मैं तुहानूं वही एक्सप्लेन कर रही हूँ। ठीक है, देन वॉट मेंडल ऑब्जर्व, मेंडल ने देखा कि ये फर्स्ट जनरेशन जिदा सारे प्लांट्स टॉल सी, बट जो साडे कोल F2 जनरेशन आया, दैन ही वॉज अमेज्ड। उसने देखा कि 75% प्लांट्स जिहड़े सीगे वो टॉल सीगे, लेकिन 25% प्लांट्स जिहड़े सीगे वो ड्वार्फ सीगे। ठीक है, या तो जिहड़ा ऑफस्प्रिंग आया वो टॉल होया या वो ड्वार्फ होया, इदां दा नहीं होएगा कि कोई इन बिटवीन आ गया। जिवें सपोज करो एक जिहड़ा प्लांट है वो हाइट सपोज करो 5 फीट है, दूजे की हाइट सपोज 1 फीट है, तो इस तरह नहीं होया कि कोई 2.5 का या 3 फीट का कोई प्लांट आ गया। या तो प्लांट टॉल होएगा या वो प्लांट ड्वार्फ होएगा। तो उन्हें जिन्ने प्लांट्स प्रोड्यूस हुए उन्हें रेशो कैलकुलेट की कि 75% टॉल ने एंड 25% ड्वार्फ्स ने, तो व्हाट इज द रेशो इज 3:1। नेक्स्ट, नाउ कैपिटल टी स्मॉल टी। अगर हम तुसी ये दो देखो, ये होमोजाइगस सिचुएशन है, ये हेट्रोजाइगस सिचुएशन है। ठीक है, फिनोटाइप इज सेम बट जीनोटाइप इज डिफरेंट। बच्चे मैं तुहानूं दो वर्ड देखे सी, अगर तुहाडा कैपिटल टी है वो भी टॉल प्लांट है, अगर कैपिटल टी स्मॉल टी है वो भी टॉल प्लांट है। तो जस्ट तुहानूं मैं प्लेन स्लाइड ते एक्सप्लेन करूँगी एक बार फिर। बच्चे ध्यान नाल देखो, आपां की कीता, एक पेरेंट सी कैपिटल टी, इनू असीं क्रॉस किया स्मॉल टी दे नाल। तो जिहड़ी साडी फर्स्ट जनरेशन आई सी बच्चे, उहदे च मैं तुहानूं दस्सिया कैपिटल टी स्मॉल टी इकट्ठा हो गया, क्योंकि इत्थों की आएगा, टी आएगा, इत्थों किहड़ा गैमीट आएगा, स्मॉल टी लैके आएगा। सो ये जिहड़ा कैपिटल टी स्मॉल टी है, ये प्लांट की सीगा, टॉल सीगा, और जिहड़ा पेरेंट सीगा कैपिटल टी, ये भी टॉल सीगा, और ये किहड़ा सीगा, ये ड्वार्फ सीगा, ड्वार्फ।
सो अगर कैपिटल टी जीनोटाइप है तां भी प्लांट टॉल है, अगर कैपिटल टी स्मॉल टी जीनोटाइप है तां भी प्लांट की है टॉल है। सो इट मीनस वॉट, अगर तुसी प्लांट दा फिनोटाइप देखते हो तां प्लांट दा फिनोटाइप की है, एक्सटर्नली थानू टॉल प्लांट दिख रहा है, बट अगर तुसी ओदा जीनोटाइप देखते हो, ओदी जेनेटिक कॉन्स्टिट्यूशन देखते हो, दैट इज डिफरेंट, जीनोटाइप इज डिफरेंट। इस प्लांट का जीनोटाइप कैपिटल टी है, इस प्लांट का जीनोटाइप कैपिटल टी स्मॉल टी है। ठीक है, सो वापस चलिए आप अपनी स्लाइड पे, आपा की पढ़ा कि दोनों सिचुएशन दे विच फिनोटाइप सेम है, फिनोटाइप मीन्स प्लांट इज टॉल बट जीनोटाइप्स आर डिफरेंट, राइट। हुण बच्चे तुहानूं मैं दो होर टर्म्स दस रही हाँ, एक हैगी है डोमीनेंट, एक हैगी है रिसेसिव। डोमीनेंट एंड रिसेसिव करैक्टर बहुत इंटरेस्टिंग है, बहुत ईजी है, ध्यान नाल इहनूं समझो बच्चे। जदों मैं टॉल प्लांट और डवार्फ प्लांट चों क्रॉस किया, ये मेरे पेरेंट्स हैं, तो मैं तुहानूं दस्सिया कि फस्ट जिहड़ी जनरेशन आई उहदे विच जीनोटाइप की है कैपिटल टी स्मॉल टी। हालांकि स्मॉल टी एलिल है लेकिन सारे प्लांट्स टॉल हैं, दे आर जस्ट लाइक वन पेरेंट। हेटेरोजाइगस तुहानूं समझ आ गया बिकॉज दोनों एलिल्स जिहड़े ने वो डिफरेंट है। सारे प्लांट्स इत्थों तक तुसीं समझो, सारे प्लांट्स की ने, दे आर ऑल टॉल प्लांट्स। यू आर गेटिंग दिस पॉइंट। सो whenever there is a cross between tall plant and dwarf plant, सारी F1 जनरेशन की होएगी, उधर जीनोटाइप की होएगा हेटेरोजाइगस है, लेकिन वो सारे फिनोटाइप की हैं, सारे दे सारे टॉल प्लांट्स ने। ठीक है, तो मेंडल प्रपोज दैट इन अ पेयर ऑफ डिसिमिलर फैक्टर्स ओनली वन डोमिनेट्स द अदर। हुण जदों दो डिसिमिलर फैक्टर्स ने, वन इज टी कैपिटल एंड वन इज टी स्मॉल, दे आर नॉट लाइक, दे आर डिफरेंट, डिसिमिलर, तो उन्हां चों सिर्फ इक्को ही करैक्टर डोमीनेट करता है। जिवें कैपिटल टी टॉल प्लांट वास्ते है, इक्को सिर्फ टॉल करैक्टर ही आएगा, डवार्फ करैक्टर जिहड़ा है वो नहीं अपने आप नूं एक्सप्रैस करेगा। सिर्फ एक करैक्टर है जिहड़ा डोमीनेट करेगा, उस नूं असीं डोमीनेंट फैक्टर कहने आ, वो बॉस है। जदों कैपिटल टी स्मॉल टी इकट्ठा आएगा तो सिर्फ कैपिटल टी जिस वास्ते कोड कर रहा है वही डोमीनेट करेगा, कैपिटल टी टॉल वास्ते है। हालांकि कैपिटल टी दे नाल स्मॉल टी भी आ रहा है पहली जनरेशन दे विच, बट स्मॉल टी अपने आप को एक्सप्रैस नहीं करेगा, वो छुप के रह जाएगा, दब के रह जाएगा, उन्होंने आपां रिसेसिव करैक्टर बोलांगे। और जिहड़ा करैक्टर डोमीनेट कर रहा है, जिहड़ा करैक्टर एक्सप्रैस कर रहा है अपने आप को, उसनूं असीं डोमीनेंट करैक्टर बोलांगे। ठीक है, दूसरे नूं आपां रिसेसिव करैक्टर कहांगे। तो नाउ यू एग्री कि कैपिटल टी जो है दैट इज डोमीनेंट ओवर स्मॉल टी। स्मॉल टी नूं कौन डोमीनेट कर रहा है? कैपिटल टी कर रहा है। सो कैपिटल टी स्मॉल टी सिमिलर एलिल्स ने, और ये मैं तुहानूं हुणे दसदा ये होमोजाइगस ने, और जदों दोनों एलिल्स डिफरेंट हैं तो दे आर हेटेरोजाइगस। नैक्सट ओके बच्चे, सो ये मैं तुहानूं फर्स्ट लैक्चर दे विच दस्सिया सी कि जिहड़ा अपना ग्रेगर मेंडल सीगा, उन्हें 7 पेयर ऑफ कंट्रास्टिंग करैक्टर स्टडी कीते सी इन द पी प्लांट। फर्स्ट इज़ द सीड दी शेप, या तो सीड दी शेप राउंड है या रिंकल्ड है, देन येलो है, व्हाट इज़ द कलर ऑफ द सीड इज़ येलो या ग्रीन होएगा। देन उन्हें देखा कि जिहड़ा पॉट है, जिहड़ी फली सी, या तो इन्फ्लेटेड है, पूरी प्रॉपर शेप है, या वो इस तरह की कॉन्स्ट्रिक्टेड हैगी है। देन कलर ग्रीन है, पॉट का कलर ग्रीन है, पॉट का कलर येलो है। कलर ऑफ द फ्लावर पर्पल है, या कलर ऑफ द फ्लावर जो है वो वाइट भी सीगा। फ्लावर जिहड़े सी एक्सिस च आ रहे हैं, या फ्लावर बिल्कुल ऊपर टिप ते आ रहे हैं, टर्मिनल फ्लावर्स। देन प्लांट की हाइट, प्लांट्स आर टॉल या प्लांट आर शॉर्ट, जिहड़े शॉर्ट है उहदे वास्ते असीं डवार्फ वर्ड यूज़ किया। सो ये जिहड़े जिन्ने भी उन्हें कंट्रास्टिंग करैक्टर्स स्टडी किए, जिवें आपां कहने सीड जिहड़ा हैगा राउंड सीड है, राउंड सीड डोमीनेंट है, येलो कलर डोमीनेंट है, पॉट शेप जिहड़ी अपने इदा स्मूथ शेप दिख रही है डोमीनेंट है, इन्फ्लेटेड। इसी तरह ग्रीन है, पर्पल है, एक्सियल जिहड़े फ्लावर्स ने, या जिहड़ा प्लांट की हाइट है टॉल। जिवें मैं ये एग्जाम्पल तुहानूं बार देखना टॉल, तुसी कोई भी एग्जाम्पल तुसी लैके इसनूं आपां एक होर एग्जाम्पल आ तुहानूं दसदी हां मैं। फॉर एग्जाम्पल अगर सपोज करो आपां कहने राउंड सीड है, सो राउंड सीड वास्ते आपां आर यूज़ करांगे। ठीक है, सीड राउंड, सीड रिंकल्ड। हुण रिंकल्ड लिए आपां डब्ल्यू वर्ड नहीं यूज़ करांगे, आपां सेम एल्फाबेट लोअर केस च लांगे, ये रिंकल्ड है। ठीक है, सो जदों इसकी फर्स्ट जनरेशन आई F1 जनरेशन, तो उस दे विच साडे कोल जाइगोट बनिया, इत्थों साडा की आ रहा है आर,
ਇੱਥੋਂ ਸਾਡਾ ਕੀ ਆ ਰਿਹਾ small r, ਔਰ F1 ਜਨਰੇਸ਼ਨ ਕੀ ਬਣ ਗਿਆ r ਤੇ r। ਸੋ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਹੋਏਗਾ ਕੀ ਹੋਏਗਾ, ਦਿਸ ਇਜ਼ ਹੈਟਰੋਜ਼ਾਈਗਸ, ਦੋ ਡਿਸਿਮਿਲਰ ਐਲੀਲਸ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਜਿਹੜੇ ਸਾਰੇ ਦੇ ਸਾਰੇ ਪਲਾਂਟ ਕੀ ਸੀਗੇ, ਦੇ ਵਰ ਆਲ ਰਾਉਂਡ ਸੀਗੇ। ਇਹ ਕਰੈਕਟਰ ਬਿਕੋਜ਼ कैपिटल R ਜਦੋਂ ਪ੍ਰੈजेंट है इट इज़ अ डोमिनेंट करैक्टर, और उसकी डोमिनेंट की प्रेजेंस, हालांकि दूसरी एलील इज़ प्रेजेंट बट इन द प्रेजेंस ऑफ दिस डोमिनेंट फैक्टर ਜਿਹੜਾ दूसरा R है, R दूसरा ਜਿਹੜਾ है वो अपने आप ਨੂੰ एक्सप्रैस नहीं कर पाता, उसनों ਆਪਾਂ रिसेसिव बोलिया और इसनों ਆਪਾਂ डोमिनेंट बोलिया। सो सेम चीज़ हैगा ਜਿਹੜੇ ਉੱਪਰ ਆਪਾਂ ਫੈਕਟਰਸ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਰਾਉਂਡ, ਯੈਲੋ, ਇਨਫਲੇਟੀ, ਗ੍ਰੀਨ, ਪਰਪਲ, ਇਹ ਸਾਰੇ ਕਿਉਂਕਿ 7 ਪੇਅਰਸ ਉਹਨੇ ਸਟੱਡੀ ਕੀਤੇ, ਇਹ ਸਾਰੇ ਕਿਹੜੇ ਨੇ, ਡੋਮੀਨੈਂਟ ਕਰੈਕਟਰਸ ਨੇ। ਔਰ ਜਿਹੜੇ ਨੀਚੇ ਵਾਲੇ ਕਰੈਕਟਰਸ ਨੇ, ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਡੋਮੀਨੈਂਟ ਦੀ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਸ 'ਚ ਐਕਸਪ੍ਰੈਸ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ, ਦੇ ਆਰ ਨੋਨ ਐਜ਼ ਰਿਸੈਸਿਵ ਕਰੈਕਟਰਸ। ਸੋ ਦੇ ਆਰ ਨੋਨ ਐਜ਼ ਰਿਸੈਸਿਵ ਕਰੈਕਟਰਸ, ਔਰ ਉੱਪਰ ਵਾਲੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਦੇ ਆਰ ਆਲ ਨੋਨ ਐਜ਼ ਡੋਮੀਨੈਂਟ ਕਰੈਕਟਰਸ। ਓਕੇ ਸਟੂਡੈਂਟਸ, ਨਾउ ਨੈਕਸਟ ਮੈਂਡਲਸ ऑब्जर्वेशन। ਮੈਂਡਲ ਨੇ ऑब्जर्व ਕੀਤਾ ਕਿ ਸਮਥਿੰਗ ਪਾਸ ਫਰੋਮ ਪੇਰੈਂਟਸ ਟੂ ਆਫਸਪ੍ਰਿੰਗ ਥਰੂ ਦ ਗੈਮੀਟਸ। ਹੁਣੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਦੋਂ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਜਦੋਂ ਆਪਣੀ F1 ਜਨਰੇਸ਼ਨ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਤਾਂ ਸਾਰੇ ਪਲਾਂਟ ਸਟॉल ਆ ਰਹੇ ਨੇ, ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਮੈਂਡਲ ਨੇ ऑब्जर्व ਕੀਤਾ ਕਿ ਕੁਝ ਇੱਦਾਂ ਦੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਜੋ ਕਿ ਪਾਸ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਫਰੋਮ ਦ ਪੇਰੈਂਟਸ ਟੂ ਦ ਆਫਸਪ੍ਰਿੰਗਸ, ਰਾਈਟ। कौन उन्होंने लैके जा रहे हैं, गैमीट्स लैके जा रहे हैं थ्रू द ओवर द सक्सेसिव जनरेशन। तो वो चीज़ की है, व्हाट इज़ दैट थिंग, तो मेंडल ने उसका नाम रखा फैक्टर्स। ठीक है, उस समय जीन वर्ड नहीं यूज़ किया गया सी, एक्चुअली जीन्स ट्रांसमिट होंगे है फ्रॉम पेरेंट्स टू ऑफस्प्रिंग, बट मेंडल ने केड़ा वर्ड यूज़ किया, मेंडल यूज द वर्ड फैक्टर्स। नाउ वी कॉल द फैक्टर्स एज जीन्स। ठीक है, सो उसने की किया, एल्फाबेटिकल सिंबल यूज़ किए। मैं तुहानूं हुणे दस्सिया कि हाइट वास्ते उसने जिवें टॉल है तो उसने कैपिटल टी यूज़ किया, डवाफ वास्ते उसने स्मॉल टी यूज़ किया, बिकॉज एलिल पेयर्स ने तो अगर टॉल है तो आप कैपिटल टी लिखांगे, दिस इज़ होमोजाइगस, और अगर डवाफ है तो आप स्मॉल टी यूज़ करांगे। ये तुहानूं मैं ऑलरेडी एक्सप्लेन कर चुकी हूँ। सो कैपिटल टी भी होमोजाइगस है, स्मॉल टी भी होमोजाइगस है, लेकिन कैपिटल टी स्मॉल टी हेटेरोजाइगस है। दिस इज डिसिमिलर एलिल्स, दोनों एलिल्स डिफरेंट हैं और इत्थे दोनों एलिल्स की ने सिमिलर ने। सो अगर आप फिर थोड़ा बच्चे मैं एक्सप्लेन कर रही हूँ, अगर मैं वर्ड यूज़ कर रही हूँ कैपिटल टी टॉल प्लांट, कैपिटल टी स्मॉल टी अगेन टॉल प्लांट बिकॉज डोमिनेंट जीन इज प्रेजेंट, लेकिन एक ही है जीनोटाइप है, यू कांट सी इट इज़ जस्ट जेनेटिक कॉन्स्टिट्यूशन। But when I say plant is tall, plant is short, means that you can easily see, observe कर सकते हो, character तुसी देख सकते हो। So that is phenotype, और दूसरा वाला की हो गया genotype। सो ये मैं ऑलरेडी हूँ थानू एक्सप्लेन करता, दोबारा तो ये स्लाइड आ गई मोनोहाइब्रिड क्रॉस की। आई थिंक थानू हुण बहुत अच्छी तरह समझ आ जाएगा बच्चे। मोनोहाइब्रिड क्रॉस में थानू दस्सिया व्हेन वी टॉक अबाउट ओनली वन करैक्टर सी, हाइट आपां करैक्टर लिया, टॉल प्लांट एंड ड्वार्फ प्लांट साडे पेरेंट्स ने, जीनोटाइप की है कैपिटल टी स्मॉल टी। F1 जनरेशन गैमीट्स बने, इथों टी गैमीट आया, इथों स्मॉल टी गैमीट आया, दोनों गैमीट्स फर्टिलाइज किए, जाइगोट बनया, जाइगोट इज कैपिटल टी एंड स्मॉल टी। ठीक है, ऑल लाइक पेरेंट्स जिहड़ा है सारे टॉल पेरेंट्स हैं, ऑल लाइक टॉल पेरेंट्स। इत्थे एक मैं वर्ड लिखना सीगा टॉल पेरेंट्स, कोई भी डवार्फ पेरेंट वर्गा नहीं आया, सारे टॉल पेरेंट वर्ग है। ठीक है, F1 रिजेंबल्स, इत्थे मैं दोबारा तो लिखा है F1 रिजेंबल ओनली वन पेरेंट, राइट, एक पेरेंट वर्गे आए हैं सारे, दूसरा पेरेंट सामने नहीं आया। लेकिन जदों बच्चे आप इसनों सेल्फ पॉलीनेट किया, उस समय की होया, जो फर्स्ट जनरेशन तो सारे टॉल आ गए, लेकिन जो सैकेंड जनरेशन आई उस समय मेंडल ने ऑब्जर्व किया कि जो 75% प्लांट्स जिहड़े सीगे वो टॉल सीगे और 25% प्लांट्स जिहड़े सीगे वो ड्वार्फ सीगे। इन बिटवीन हाइट का कोई भी प्लांट नहीं सीगा। इस सैकेंड जनरेशन जी सानू रेशो मिली दैट इज 3:1। ओके, सो बच्चे इत्थे कि आपां देखा कि जिहड़ा रिसैसिव पेरेंट है, रिसैसिव पेरेंट जो कि फर्स्ट जनरेशन च अपने आप को एक्सप्रैस नहीं करता, और रिसैसिव पेरेंट जो है वो सैकेंड जनरेशन च अपने आप को किस तरह एक्सप्रैस करेगा,
इस नूं समझाउण वास्ते बच्चे एक पुनेट स्क्वायर है, पुनेट साइंटिस्ट का नाम है, उन्हें एक मैथमेटिकल स्क्वायर दिता कि किस तरह साडे गैमीट्स आपस च फर्टिलाइज करेंगे और जाइगोट फॉर्मेशन होएगा। सो मैं तुहानूं बहुत ईजी वे नाल इत्थे एक्सप्लेन करन दा कोशिश कीती है बच्चे। इत्थों तक आपां नूं समझ आ गया कि जदों अपना ये टॉल है, स्मॉल है, दैन ओनली गैमीट्स बन गए, एलील सैपरेट हो गए, फर्टिलाइजेशन हो गया, फर्टिलाइजेशन तो बाद साडा हेटेरोजाइगस जाइगोट बन गया, कैपिटल टी स्मॉल टी, प्लांट की होएंगे सारे टॉल होंगे। हुण आपां F2 जनरेशन दे विच आपां एक पुनेट स्क्वायर बना के आपां दिखांगे कि किस तरह साडी रेशो जिहड़ी है वो 3:1 आएगी। बच्चे इत्थे मैं तुहानूं फिर तो एक्सप्लेन करदी हां। देखो अपना आपां कैपिटल टी साडा पेरेंट सीगा स्मॉल टी, ठीक है। फर्स्ट जी F1 साडी बच्चे जनरेशन आई वो आई कैपिटल टी स्मॉल टी, राइट। ये हो गया साडा टॉल प्लांट। हुण जदों उन्हें सैल्फिंग किया, सैल्फिंग दे विच उन्हें इसी प्लांट नूं आपस दे विच सैल्फ करता, मीनस रिप्रोड्यूस कराता, तो हुण इसके गैमीट की बनणगे कैपिटल टी एंड स्मॉल टी, इसके गैमीट की बनणगे कैपिटल टी एंड स्मॉल टी, ठीक है। सो इसका आपां एक पुनेट स्क्वायर बनाया। बच्चे मैं इत्थे दोबारा बनानी है, लेट अस सी। मैं इत्थों सैल्फिंग तो मैं फिर तो शुरू कर रही हाँ, जो मैं सैकेंड जनरेशन बनानी है, ठीक है। सो इसके भी दो तरह के डिफरेंट गैमीट बने, कैपिटल टी स्मॉल टी, और ये दो तरह के गैमीट बने कैपिटल टी स्मॉल टी। हुण जाइगोट बनाने वास्ते आपां एक स्क्वायर बनावांगे, ठीक है। सो एक साइड ते आपां जो मेल दे गैमीट्स बन रहे हैं वो लिख लांगे, दूसरी साइड ते जो फीमेल दे बन रहे हैं आ वाले वो आपां इत्थे लिख लांगे। हुण आपां इस नूं क्रॉस करांगे इदां। सो इत्थे की आ गया कैपिटल टी, इनू इहदे नाल करांगे कैपिटल टी स्मॉल टी, फिर कैपिटल टी स्मॉल टी, फिर आ गया स्मॉल टी, ठीक है। हुण इत्थे की देखो दोनों कैपिटल टी ने, कैपिटल टी, फिर कैपिटल टी स्मॉल टी, फिर कैपिटल टी स्मॉल टी, फिर स्मॉल टी, दोनों कैपिटल ने, प्लांट की हो गया टॉल हो गया, ठीक है। फिर कैपिटल टी आ गया, डोमिनेंट है, एक्सप्रेस नहीं करेगा छोटा वाला, फिर प्लांट टॉल हो गया। फिर दोनों आ गए कैपिटल टी, फिर प्लांट टॉल हो गया। नाउ कैपिटल टी इज एब्सेंट, दोनों एलिल्स ड्वार्फ ने, तो प्लांट की होएगा ड्वार्फ हो गया, ड्वार्फ। सो साडे कोल रेशियो की आ गई, 3 प्लांट साडे कोल टॉल आ गए, एक प्लांट साडे कोल ड्वार्फ आ गया। सो अगर आप फिनोटिपिक वाइज देखांगे तो साडे कोल रेशियो आ गई 3:1, 3 प्लांट्स टॉल एंड 1 प्लांट्स ड्वार्फ। लेकिन अगर असीं जीनोटाइप देखते हैं, कैपिटल टी इक्को बार आया, स्मॉल टी इक्को बार आया, लेकिन कैपिटल टी स्मॉल टी साडे कोल 2 बार आया, ठीक है। सो जीनोटाइप रेशियो होगी 1:2:1। सो आप अपने स्लाइड पे चलो, तो मैं बहुत क्लियर लिखा है। नाउ यू कैन सी, हुण तुहानूं समझ आएगा। ये पुनेट स्क्वायर हो गया, फिनोटाइप हो गया 3:1, बिकॉज 3 प्लांट्स 1, 2, 3 3 टॉल हो गए और स्मॉल टी ड्वार्फ हो गया। जीनोटाइप देखोगे 1:2:1, 1:2:1, 1 की हो गया कैपिटल टी, 2 की हो गए कैपिटल टी स्मॉल टी, इदा के 2 बड़े, और एक हो गया स्मॉल टी, राइट। सो फिनोटिपिक रेशियो होएगी 3:1, 3 टॉल 1 ड्वार्फ, एंड जीनोटिपिक रेशियो जी होएगी वो होएगी 1:2:1। सो इस ए पुनेट स्क्वायर में फिर तो एक्सप्लेन किया है। 1/4 जेडे ने कैपिटल होंगे, हाफ जेडे ने कैपिटल टी स्मॉल टी होंगे, फिर 1/4 जेडे होंगे स्मॉल टी होंगे, राइट। सो ये जोड़ा है रिसैसिव करैक्टर जो कि फर्स्ट जनरेशन च एक्सप्रैस नहीं हो रहा सी, वो रिसैसिव करैक्टर अपनी अपीयरेंस देगा, दोबारा तो अपीयर होएगा इन F2 जनरेशन। सो इत्थे मैं क्यों स्टार बनाया है कि जदों 2 एलिल्स डिसिमिलर ने, कैपिटल टी स्मॉल टी दोनों एलिल्स डिसिमिलर होंगे हैं बच्चे, तो जोड़ा कैपिटल टी है वो हमेशा डोमीनेट करेगा किदे उपर, रिसैसिव के उपर। अगर कैपिटल टी प्रेजेंट है तो रिसेसिव करैक्टर एक्सप्रैस नहीं करेगा, जो डोमीनेंट करैक्टर जो जिस वास्ते डोमीनेंट जीन हैगी है एलील प्रेजेंट है वही करैक्टर सामने आएगा इन द फर्स्ट जनरेशन। बट सैकेंड जनरेशन में आपां देखा कि जदों अगर साडा ड्वार्फ करैक्टर आ भी रहा है तो वो तदों ड्वार्फ होएगा जदों डोमीनेंट करैक्टर एबसेंट है। सो जो कैपिटल टी दोनों स्मॉल टी होएगा ताही ड्वार्फ करैक्टर आएगा, अदरवाइज जिथे कैपिटल टी प्रेजेंट है वो सारे दे सारे टॉल प्लांट्स होंगे।
ਸੋ ਠੀਕ ਹੈ, ਆਈ ਥਿੰਕ ਬੱਚੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਮਝ ਆ ਗਿਆ ਹੋਏਗਾ। ਅੱਜ ਦਾ ਇਹ ਲੈਕਚਰ ਬਹੁਤ ਇੰਟਰਸਟਿੰਗ ਸੀ। ਦੇਖੋ ਟੌਲ ਤੇ ਡਵਾਰਫ ਦਾ ਪਲਾਂਟ ਹੈ, F1 ਸਾਰੇ ਟੌਲ ਨੇ ਔਰ F2 ਦੇ ਵਿੱਚ 3 ਟੌਲ ਆ ਰਹੇ ਨੇ, ਇੱਕ ਡਵਾਰਫ ਆ ਰਿਹਾ। ਸੋ NCERT ਦਾ ਡਾਇਗਰਾਮ ਹੈ। ਸੋ ਰੇਸ਼ੋ ਜਿਹੜੀ ਫਿਨੋਟਿਪਿਕ ਰੇਸ਼ੋ ਹੈ ਉਹ 3:1 ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਜੀਨੋਟਿਪਿਕ ਹੈ ਉਹ 1:2:1 ਹੈ। ਸੋ ਦਿਸ ਇਜ਼ ਜੀਨੋਟਿਪਿਕ ਐਂਡ ਦਿਸ ਇਜ਼ ਫਿਨੋਟਿਪਿਕ। ਠੀਕ ਹੈ ਸਟੂਡੈਂਟਸ, ਸੋ ਦੈਟਸ ਆਲ ਫॉर ਟੁਡੇ। ਅੱਜ ਦਾ ਚੈਪਟਰ ਬਹੁਤ ਇੰਟਰਸਟਿੰਗ ਸੀ, ਨਵੀਂ ਟਰਮੀਨੋਲੋਜੀਜ਼ ਦੱਸੀਆਂ, ਨਵੇਂ ਵਰਡਸ ਦੱਸੇ। ਇਸ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਇਸ ਵੀਡੀਓ ਨੂੰ ਦੇਖੋ ਐਂਡ ਟਰਾਈ ਟੂ ਅੰਡਰਸਟੈਂਡ ਇਟ। ਆਈ ਐਮ ਵੈਰੀ ਸ਼ੋਰ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਜ਼ਰੂਰ ਸਮਝ ਆਏਗਾ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਸੋ ਮਚ।